اللہ آپ کو سلامت رکھے. خالق صاحب ہندو مسلم سکھ ہوتا آواز دو آواز دو. جناب چودھری خالق صاحب جناب TSO صاحب ڈیلر ایسوسیشن ڈیلر ایسوسیشن لو جی اپنے سارے کیا کر رہا ہوں چلو جی چلو جی لو جا لائیو فوٹو ایاں ہوتی ہے کہ جناب خالق صاحب اپنی سروس کے دوران عوام سے کیسے ڈیل کرتے رہے، ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے رہے، اور میں ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آج دن تک ان کی کوئی شکایت نہیں آئی. حالانکہ فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ اس میں کافی شکایات رہتی ہیں، لوگوں کا گلہ شکوہ رہتا ہے، لیکن یہ اتنے متبرانہ طریقے سے ڈیل کرتے رہے کہ کسی آدمی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ یہ ایمانداری کے ساتھ اپنا منصب انجام دیتے رہے. زندگی تو وہ ہے کہ جس کا کوئی رشک کرے، جس کا احساس عوام کی نظر اور دلوں تک جائے، اور اسے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو خالق صاحب کی کارکردگی رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہے. کیونکہ ہر انسان میں آئے ہوئے لوگ ہیں، میں سب کا ویلکم بھی کرتا ہوں اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں اپنی ڈیلر ایسوسیشن کی طرف سے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں یہاں پہ کہ آپ چھوٹی سی کال پہ ہمارے چھوٹے سے پروگرام میں آپ نے جو یہاں پہ تشریف لائے. باقی رہی بات یہاں پہ TSO صاحب کی، جتنے اچھے انداز سے یہاں انہوں نے کام کیا آج ان کو پھل مل رہا ہے، کیونکہ اچھے کام کرنے کے بعد ہی کسی کو کسی اسٹیج سے اچھے طرح سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی اچھی محفل لگائی جاتی ہے. میں آج کے اس موقع پہ میں سب کا یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بالخصوص TSO صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے یہاں ڈپارٹمنٹ کو چھوڑا ہے، آج الوداع کہا ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نہ ہم کو چھوڑیں گے نہ اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑیں گے. آگے بھی آپ نے جب ٹائم ملے گا آپ کو تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے، گائیڈ لائن دینی ہے، ہم کو بھی ساتھ میں چلانا ہے اور ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی مل جل کے چلنا ہے. یہ بھی میں آپ سے یہاں سے گزارش کروں گا. اور بالخصوص جو ہے آج میں نئے ہمارے جو TSO آنے والے یہاں پہ کبیر صاحب، ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو آپ آج چیئر پہ بیٹھے میں ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں. اور بالخصوص میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. جتنی تعریف کی جائے اتنی اسٹیج سے کم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہ کوئی کسی کمپین کو دیکھ کے کام کیا یا کسی آفیسر کو دیکھ کے کام کیا. انہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کے ہر ایک غریب آدمی کا کام کیا. جو ان کے دفتر میں غریب مظلوم آیا وہ پریشانی لے کے آیا ہوگا، لیکن جب وہ گیا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہم نے دیکھا، بڑا وہ خوش چہرہ نظر آیا کہ آج یہ آدمی اپنی جس کام کے لیے آیا وہ کام پورا کروا کے جا رہا ہے. میں آنے والے جو ہمارے TSO صاحب ہیں جناب کبیر صاحب، ان کے پاس چارج رہے گا. TSO تو شاید کوئی دوسرے آئیں گے، لیکن جب تک کبیر صاحب یہاں کام کریں تو جس طرح خالق صاحب نے کیا اس سے بھی 2 گنا بڑھ کے کبیر صاحب کا ایک موقع آیا، کیونکہ ہمارے جو TSO ہیں خالق صاحب وہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں. سب سے پہلے بچپن کے بعد پڑھنا، اس کے بعد سروس لگ جانا، اس کے بعد ریٹائر ہونا، اور اس کے بعد ابھی فرید میر صاحب
इनको तो बड़ा पता नहीं एमएलए के लिए बोल के, मैं कहूंगा आप हाज करो, अल्लाह अल्लाह करो, लोगों की सेवा करो। आप अगर अपने इलाके में लोगों की सेवा करोगे, आपको कोई एमएलए सरपंच बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की सेवा करते जाओ, आपका हक भी है, और आपको अल्लाह अल्लाह करना है। आप अपने बच्चे पढ़ाओ, इस जंजल में नहीं फंसना। तो आप मैं कहूंगा कि ये टोपा की, आप इनको सबसे पहले ये मेंढर से टोपा जा रहे हैं, मैं कहूंगा ये और मजीद साहब टोपा को आगे बढ़ाए। उसके बाद सलमान छप्पर चढ़ाया है, तो साथ में मुश्ताक साहब है, ये तीनों उसको आगे बढ़ाए। उसके बाद जो एमएलए, काफी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, जितने एमएलए रहते सभी मिलजुल के इस मेंढर को आगे बढ़ाए तो बड़ी तरक्की हो जाएगी हमारे लिए। सारे एमएलए, अगर मेंढर की तरक्की हो जाएगी, अगर एमएलए एक बनेगा तो मेंढर पिछड़ता रहेगा, तो मेरे दादे से गरीबों के साथ ज्यादती का जुल्म है। तो बाकी जिस जिसको कोई जुम्मेदारी मिली उसने काम किए। काम करना जो है, इक़्तिदार मिलता है और इक़्तिदार के बाद लोगों को सफाई देने की जरूरत, क्योंकि कब्र और मुर्दे का हिसाब होता है। कब्र में जिस वक्त कोई जाएगा, अगर खालिद साहब ने सर्विस की है, इसके बाद ये जितनी जिंदगी के याम है इनके, चाहे इनकी जिंदगी 50 साल है, 40 साल है, 10 साल है या एक दिन है, तो जिस वक्त ये कहीं कब्र में जाएंगे, सबसे पहले इनका ये सर्विस का हिसाब लिया जाएगा कि आपने ये नौकरी की, आपने कितने गरीबों की सेवा की, आपने कितने लोगों के साथ क्या क्या सलूक किया। सबसे पहले ये सर्विस का, ये कब्र में भी ये हिसाब होगा। उसके बाद इसके आने वाला जो पीरियड है, इसलिए मैं इनको कहता हूँ हज करो, अल्लाह अल्लाह करो, तो ताकि जो आखिरत है वो दुरुस्त हो जाए। क्योंकि आप बाइज्जत आज रिटायर जा रहे हैं, जिंदगी में हर मुलाजिम को, और खासकर आज का जो दौर दौरा है थे और मेंढर से ही रिटायर हो रहे हो, ये सबसे बड़ी मुबारकबाद। आपके माँ बाप को मुबारकबाद हो और आपको मुबारक हो। इस दौर में बाइज्जत मुलाजमत करके अपने घर जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज आप इस दौर में बड़े अच्छे तरीके से हार पहना के, पगड़ी बांधकर अपने घर जा रहे हो। आपको मुबारक हो। इन्हीं लफ्जों पर इत्फाक करता हूँ। यार मोहम्मद फिर गए दिलदार मोहम्मद, लगे नैया से ते जाइए केड़े पास मोहम्मद, दिल नहीं लगता यार मोहम्मद, दिल नहीं लगता यार मोहम्मद, जाइए केड़े पासे संभाल देने तेरियां निशानियां, रखियां संभाल देने तेरियां निशानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दे आ जानिया, दिला दे आ जानिया, ओए दिला दे आ जानिया, रखियां संभाल देने तेरियां। आप कितने रात बैठे हो, मुंह की बात नहीं है। आपको पता है हमारे आदमी साहब कितने दिनों से यहाँ मौजूद हैं, कितना अरसा ये हो गया, मगर हर बंदा जो मुझे मिलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि हर आदमी की दुकान पर यह अल्फाज आता है कि हमारा एसडीएम बहुत अच्छा आदमी है, हक वो है, इंसाफ पसंद। और आज की महफिल में मैंने बहुत सारे लोग देखे, मगर तहसील का इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी आज की महफिल में बहुत कम आते हैं। तो एसडीएम साहब का महफिल में शरीक होना, मैं बाबू अब्दुल फारूक साहब को मुबारक दूंगा कि ये आपकी कारकर्दगी का नतीजा है। एसडीएम साहब खुशी खुशी आपकी महफिल में आपको अदा करने आए हैं। और यही नहीं, बल्कि ये जहाँ ये बड़ी खतरनाक कुर्सी है, ये सब की मामूली नहीं। मेरे पास से हमारे इलाके के हमारे मोहतरम माओ अब्दुल कयूम साहब भी TSO की कुर्सी से यहाँ से विदा होके गए हैं, मगर मैं आज हमारे पास मौजूद हैं, मैं आपको गुजारिश करूंगा
मैंने उनके साथ बड़ा अरसा गुजारा है और यहाँ लगभग इनके मोहल्ले में 40 साल मैंने इमामत की है। मगर बाबू अब्दुल कयूम साहब जब यहाँ हमारे मस्जिद में रहा, ये हमारी मस्जिद के कैशियर भी रहे हैं और मस्जिद की सारी अवाम इन पर 16 होने मुतफिक थी। मैं ये कहूँगा, एक आदमी तहसील अफसर हो और फिर हर आदमी मस्जिद का नमाजी और जामे मस्जिद का नमाजी जिसके दिल पर इनके हक में दुआया कलमे निकलते हूँ, बोलो हम उसको अच्छा नहीं कहेंगे तो क्या अल्लाह की नजर में वो कम होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भाई नहीं। मैं आपको इस मुबारक महफिल, अहले इल्म की महफिल, हसास लोगों की महफिल में ये फखरिया कहूँगा कि बाबू अब्दुल खालिक साहब जो उनसे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन पर इनके बाप की, इनके बुजुर्गों की निगाह करम है और ये लोग अच्छे लोग हैं, खुश अकीदा हैं, अमार के लिहाज से अच्छे हैं, सोम सलात वाले हैं, दीनदार हैं। और फिर खुशी की बात यह है, मरकजी जामे मस्जिद में भी जो इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर तक की मालियत की जो तामीर हुई है, उस मस्जिद के अंदर जो मेहराब हमारा बना है उसमें सिर्फ बाबू अब्दुल खालिक साहब का पैसा लगा। ये एक बात मुबारक की है और खाली आई नहीं, बल्कि इन्होंने मुझे बर्जस्ता कहा कि मेहराब के अंदर किसी और पैसे नहीं लाना, मेहराब ही जितना पैसा लगा मुझे। मेरी यह खुशी है कि जितना अल्लाह काबिल पैसे लग जाए ये कम देना, समझे ना? ये हम उनको मुबारक देते हैं और उसके साथ यही नहीं कि बात खिलावे की है, बल्कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और ये कहते हैं कि जी बाबू साहब जब कहीं मुश्किल आती है गरीबों को पैसा देते हैं, बेसहारा लोगों का सहारा बनते हैं। यही एक दुनिया के अंदर पहचान है। इसीलिए बुजुर्गों ने 60 लफ्जों में एक हिदायत का जुमला फरमाया, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जिस इंसान का अमल दुरुस्त है, जिसकी नीयत इंसाफ है, दूसरे के हक में जो अच्छा सोचता है, बड़ा इंसान वही है। इसलिए आज की जो मुबारक तकरीब अलविदाई में मैं बाबू अब्दुल खालिक साहब को जनाब हकीम साहब की वसातों के साथ बहुत बहुत मुबारकें दूंगा, इसलिए कि ये भी एक खुशी का पैगाम है। खुशियाँ जिंदगी के बड़े मोड़ लेती हैं। एक खुशी वो है कि जब माँ बाप खुश होते हैं बेटा पैदा हुआ, दूसरी खुशी वो होती है जब शादी के बंधन में इंसान लगता है, और फिर तीसरी खुशी मुलाजिम को होती है जब वो बाइज्जत अपने घर जाता है, और एक आखिरी खुशी होती है जब दुनिया से उसका गुजर हो। हर आदमी जब जनाजे के साथ चले तो कहे कि मुबारक की जनाजे वाले को कि इसने जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजारी है, यहाँ पर अगली जिंदगी अगली खुशी भी इनको अल्लाह पाक नसीब फरमाए। और जिस तरह बहुत सारे हमारे कौशल साहब ने, बाकी वालों ने कहा कि मुलाजमत के दौरान बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते थे, अब आप आजाद हो गए हो, आप मुलाजमत से आजाद हुए हो, हमारे सारिया से आजाद नहीं हुए हो, लिहाजा अपनी आने वाली जिंदगी को और ज्यादा खुशगवार बनाने की कोशिश करोगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें अता फरमाए। आने वाले हमारे क्लस्टर साहब जो है, अल्लाह पाक उनको भी अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अपने ख्यालात का इजहार करें और इसके बाद इसमें बयान है यहाँ मैं सबसे गुजारिश करूँगा उनके साथ उनकी बरकत करें। नीयत की मैंने सोचा कि मेरी तरफ से किसी का काम हो जाए, मैं ये सोचता रहा, हमेशा मेरी नीयत रही। और जितने मेरे साथी रहे, जितने मेरे डीलर हजरात रहे, सभी को मैं ये कहता रहा यार किसी के काम आओ, पत्थर बन के मत जियो, किसी का काम आओ। इंसान का ये काम है कि किसी का काम आना। तो मेरी यही रही। बाकी मैं जितनी आप लोगों ने, हकीम साहब मेरी किला ने जितनी मेरी तारीफ की, मुफ्ती साहब किला ने मेरी इतनी तारीफ की, मैं इसके नहीं अपने आप को सुनता। लिहाजा मैं यही बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खास करके मेरे दिल का हजरात और जितने मेरे मेहमान आए हुए हैं बाहर से, सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। बाकी मैं दिल हजरात से मैं वक्तन मैंने 41 साल की सर्विस में है, मैंने अपनी 41 साल की सर्विस कम्प्लीट की है। तो वक्तन मैं इनसे कभी ऊंची बात में बोलता रहा, कभी किसी को डांटता भी रहा। मैं इन सब से माजरत खुआ हूँ, क्योंकि एक सरकार के काम करने के लिए मेरे को घर को कोई मतलब नहीं, आपसे कोई नाराजगी नहीं थी, कोई मुखालफत नहीं थी, लेकिन सरकार का काम करने के लिए मैंने आपको डांटता भी रहा। मैं सबसे माफी चाहता हूँ, सबसे माफी खुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ करेंगे। लिहाजा मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है,
मैं सभी हजरात को, दिलवर हजरात को, जितने मेरे मेहमान आए हुए हैं, खास करके यासीन साहब, मुफ्ती साहब, हाजी मीर मोहम्मद साहब, शफीक साहब, सभी को मैं ये दावत दूंगा कि मेरे साथ चलेंगे मेरे घर और वहाँ इकट्ठे बैठ के हम लंच करें। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी आदमी यहाँ से वापस जाएगा मेरे साथ चलेगा।